हाय गाइस वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल सिक्स पैटर्न्स की, डिफरेंट रिजेक्शंस की, साइन ऑफ रिवर्सल्स की। इसके साथ साथ मारुबुजु कैंडल, engulfing, bullish engulfing, bearish engulfing, understand candle with a structure, Marubozu candle, rejections, type of rejections, order block candles, okay, dark clouds, piercing patterns, three soldiers, crow patterns, different candles. Okay, we're going to be talking about, so this lecture is going to be very important, so you don't have to discard or neglect this one. Okay, make sure watch this video up to the very end because I'm going to share some important information, and I'm 100% sure if you fully consume or fully understand or digest this information, uh, trading is going to be very easy for you. Like the entry module is going to be very easy for you. Okay, so candlesticks are very important. Why we use candlesticks? So there was a person, Monahisa Huma, who basically developed, starting में at the years back in the history, कैंडल्स जब हमारे पास होती थी, ट्रेडिंग होती थी कैंडल्स पे, वो हम चार लोग की ट्रेडिंग होती थी कैंडल्स पे, ठीक है। बट as we are living in the era of artificial intelligence, now it's 2025, so the world is growing, everything is changing, the world is becoming digitalized. Like today, like in this era we have even digital products. Like we can go online, we can buy some digital products as an asset for our future investment. So that's why, like, today we use these candles for this purpose, just to know that okay, this is a sign of reversal, because these are not just candles. Candles gives you the information when to buy, when not to buy, what to buy. This is basically, you don't have to consider, I don't want you not to consider it like a candle, but consider it like this is basically the movement. Like imagine that this is basically the price movement. Okay, that's how the price goes in waves, and that's how the price move. Okay, so I want you to digest this information in this way. So this is basically the opening price. Let me talk about this. Open and close. So this candle, it opens here, and this one is closed here. Okay, let me draw the wick. Okay, so guys, this is basically, it's your wick basically. Okay, this is basically the wick, this one is wick. Okay, this is wick. You have to understand the wick, because you can, wicks, this is very important. It's the data, you cannot neglect this information. Okay, it gives you the knowledge, the signal that okay, there is some bearish pressures come into play. Okay, because it's indicating rejections, ये rejections को indicate करती है wicks कि लाइक यहाँ पे सेलर प्रेशर ज्यादा था। इट इस कैंडल में ग्राफ देके, सो ये अच्छा, ये सेल की, बाय और सेल की मैं बता दूं। बाय कैंडल, this is going to be your buy candle, this is going to be your buy candle, and this is going to be your sell candle. सेल कैंडल हमारे पास होती है रेड कलर की, और बाय कैंडल हमारे पास होती है ये ग्रीन कलर की, ठीक है। सो होप सो टिल नाउ दिस पॉइंट्स आर क्लियर। ये जो ब्लू कैंडल है, यहाँ से हमारे पास बॉटम से ओपन होती है और टॉप पे क्लोज होती है, और ये जो है ये या ऊपर से लाइक टॉप से ओपन होती है और एंड पे क्लोज होती है। सो ये लाइक इनके जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो ऑपोजिट है, ठीक है। And it closed here. It's open air, it's open air, it's closed air. Lower wicks, and these are upper wicks. Okay guys, this is basically wicks.
This is basically about the candles opening high, opening low, wicks. Okay, this is, this is also in order block candle. I want you to understand this. Now I'm going to be talking about Marubozu candle. Marubozu candle कैसी होती है और ये क्या indicate करती है? So Marubozu candle अगर आपको बाय ट्रेंड में मिलती है, फॉर एग्जांपल मार्केट फॉर एग्जांपल बॉटम में है, ठीक है, और ये कैंडल आपको ऐसे बाय जोन में मिलती है, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी यूर मारूबुजू कैंडल। अगर ये किसी जोन को मूवमेंट के साथ तोड़ती है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल जो है, ये कैंडल ऐसे जोन में आपको मिलती है, एंड इमेजिन दैट देयर इज नो विक्स, so what is it indicating? It's indicating that there is some buying pressure come into play. Okay, so ये एक मूवमेंट को और एक ये प्रेशर्स को इंडिकेट करती है जब इस पर कोई विक्स नहीं होते। विक्स मैंने आप लोग को दिखा दिए, विक्स कौन से होते हैं, ये विक्स है, ये ऊपर जो लाइन है ये विक्स है, ठीक है, दीज आर विक्स। ओके गाइस, दीज आर विक्स। Oh, sorry. So these are basically your wicks. ओके गाइस, सो ये एक मूवमेंट को और प्रेशर को इंडिकेट करती है। अब हम बात करते हैं, लेट मी रिमूव दिस। अब हम बात करते हैं सेल की, कि सेल में अगर फॉर एग्जांपल हमें ऐसी कैंडल मिलती है तो ये क्या इंडिकेट करेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेल, मार्केट सेल आने वाली है, ठीक है। अब इस एग्जांपल का फॉर एग्जांपल अगर हम लें, ये इमेजिन करो ये आपके पास एक सपोर्ट जोन था, इमेजिन करिए आपके पास एक सपोर्ट जोन था। अब सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ, लेकिन ब्रेक के साथ साथ आपके पास एक कैंडल बनी जो कि इस तरह की थी यहाँ पे, ठीक है, इस तरह की थी यहाँ पे, ठीक है। सो ये कैंडल क्या इंडिकेट करती है बेसिकली, ये इंडिकेट करती है कि देयर इज सम सेलिंग प्रेशर कम इनटू प्ले। आपके पास ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद रीटेस्ट हुआ और आपके पास ऐसी कैंडल जब बन जाती है, सो ये एक सेलर प्रेशर को इंडिकेट करती है कि मतलब स्ट्रॉन्ग सेल पुश आने वाला है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब अब आपके पास लाइक ऐसे फॉर एग्जांपल, लेट मी रिमूव दिस, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ऐसी कैंडल ही बन रही होती है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल मार्केट किसी, फॉर एग्जांपल ये एक लेवल है, इमेजिन करो ये एक लेवल है हमारे पास, ये येलो लाइन, ठीक है। अब एक लेवल पे आपको ये कैंडल दिखी है, ठीक है, इस तरह की कैंडल। अब सेम आपके पास ये कैंडल, ऐसी कैंडल यहाँ पे भी बनी है, ठीक है। इमेजिन करो सेम आपके पास ऐसी कैंडल यहाँ पे भी बनी है। सो फॉर एग्जांपल ये एक सेम जोन है, ठीक है, और सेम जोन पे आपके पास ऐसी फॉर एग्जांपल कैंडल्स बन रही है। सो व्हाट इज इट इंडिकेटिंग? इट्स इंडिकेटिंग दैट देयर इज सम सेलिंग प्रेशर कम इनटू प्ले, ठीक है। एक जोन से फॉर एग्जांपल रिजेक्शन ऐसे होती है गाइस, एक जोन से मार्केट आपके पास रिजेक्ट आ रही होती है, सो उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये एक प्रॉपर जोन है, ठीक है। उस एरिया को हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये एक प्रॉपर जोन है। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया, आपने कोई सेल का ट्रेड लेना है, तो सेल का ट्रेड जब आप लोगे, जब आप किसी सेल का ट्रेड लोगे किसी जोन से, मार्केट को एक जैसे जोन ड्रॉ करोगे, और जब आप एक जोन ड्रॉ करोगे तो उस जोन से ही आप जो है लाइक देखोगे कि मार्केट का क्या बिहेवियर है, क्या आपके पास लाइक देखने को मिल सकता है, और आपके पास ऐसी कैंडल्स तो आप सेल कर सकते हो उस लेवल से। मैंने बहुत सारे ब्रेकडाउन शेयर किए हुए हैं, और मेक श्योर करो कि आप उन ब्रेकडाउन्स को देखो। जब आप उन ब्रेकडाउन्स को देखोगे तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उससे मिलेगी, ठीक है। ये अच्छा, अब हम बात करेंगे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। मैं आपको अब लेकर जाता हूँ उस पे गूगल पे, होप सो वहाँ पे हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एंड इवनिंग स्टार।
गाइस मैं बता दूं आप लोगों को कि आपने फुल रिलाय इन चीज़ों पे नहीं करना, आपने प्रॉपर सपोर्ट्स ड्रा करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फॉर एग्जांपल ये आपका है मॉर्निंग स्टार, अगर ये आपको मिलती है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, आपने इनको नहीं देखना। 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है, 1 मिनट, 5 मिनट्स पे आपने इनको नहीं देखना। 5 मिनट्स पे ही आपको मिलेगी, बट मेक श्योर करो कि आपके पास बहुत सारे कंफर्मेशन हो, ठीक है। ये एक्यूरेट इस तरह नहीं होगी, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, जैसे लाइव मार्केट में ये आप देखो, ठीक है। सो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ये क्या इंडिकेट करता है? मॉर्निंग स्टार आपके साथ आपके पास इंडिकेट करता है, let me draw this picture over here, let me save this one, और सेम पिक्चर अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँ सो दैट यू गाइस कैन सी मोर क्लैरिटी। सो गाइस आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी पिक्चर को अपलोड करना है, ठीक है, तो आपने इस इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे चूज जो पीएनजी हो वट एवर आप लाइक अपलोड कर सकते हो। इट्स सो इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। अब मैं इस पिक्चर को फॉर एग्जांपल यहाँ अपलोड करता हूँ, ये अपलोडिंग हो रही है। इस तरह आप अपने लाइक पिक्चर्स को वगैरह को आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इट्स सो इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें मिलता है नहीं मिलता, और ये क्या इंडिकेट करता है, ये साइन ऑफ रिवर्सल इंडिकेट करता है नहीं करता। सो ये गाइस पिछली ब्रेक डाउन्स की वीडियोस है, ये मेक श्योर करें कि आप इनको देखें। ये बहुत अच्छा मूव हमारे पास आया था रिसेंटली। अब गाइस आप अब ये देखें ना, ये मैंने लिखा है ना साइन ऑफ रिवर्सल, ये भी आपका एक मॉर्निंग स्टार, ये इवनिंग स्टार है। वट एवर आई एम नॉट गोना नेम इट, मैं जस्ट पैटर्न्स को ही फॉलो कर रहा होता हूँ। आई एम गोना पुट इट दिस वे। ये मॉर्निंग स्टार, हाँ जी, वो जो ये मॉर्निंग स्टार आपको मिलेगा बॉटम पे, ठीक है। लाइक जब मार्केट आपके पास मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन जोन में आई हो, और ये आपको बॉटम पे मिलेगा, ठीक है, ये वाला पैटर्न। और जो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये आपको हमेशा टॉप पे मिलेगा, ठीक है। ये हमेशा आपको टॉप पे मिलेगा, जो इवनिंग स्टार अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। इनके नेम अपोजिट है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। हम इसको लाइक यही कहते हैं, ये एक मॉर्निंग स्टार है या वट एवर, ये एक इवनिंग स्टार है। ये आपने फोकस किस चीज़ पे करना है? आपने फोकस इस चीज़ पे करना है कि आपने स्ट्रक्चर को देखना है, आपने प्रॉपर डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस माइंड में रखना है, ठीक है। और फिर आपने एक डिसीजन लेना है कि जी अब मैं फॉर एग्जांपल सेलिंग की तरफ जा सकता हूँ, अब मैं बाइंग की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, और इस तरह से आपने ट्रेड्स करने हैं। अब ये जो देखे जाए तो ये भी आपका एक इवनिंग स्टार है, ये भी आप इवनिंग स्टार है। देखो गाइस, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती मार्केट में, ठीक है। आप ये एक जस्ट साइन ऑफ रिवर्सल है, एज ए आइडिया हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एज ए कॉन्फर्मेशन हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पे हम प्रॉपर पूरा रिलाई नहीं कर सकते। ये है आपका, अब ये कैंडल ये जस्ट आपको कंफ्यूजन के लिए बनी है, ठीक है। सो जस्ट टू सी गेट द आइडिया, एंड वंस यू गेट द आइडिया दैट्स व्हाट मेक्स यू देयर, ठीक है। अब ये ट्रेड अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ठीक है, यहाँ पे आपका सॉरी ये तो फेक आउट था, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास हुआ है, लेकिन ये एक जोन है, यहाँ पे सेम फेयर वैल्यू गैप बना है, मार्केट यहाँ से अगेन रिजेक्ट हुई है। सो ये इंडिकेट करती है एक रिवर्सल को, ठीक है। ये हमें लिखा भी ये साइन ऑफ रिवर्सल, मैं आपको अब ये दिखा देता हूँ। ये भी एक सपोर्ट था हमारे पास, ठीक है। अब मैं 30 मिनट्स पे जाता हूँ टू सी मोर क्लैरिटी, ये जोन मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो दो कैंडल्स है, दीज आर ऑल्सो साइन ऑफ रिवर्सल, ठीक है। ये एक साइन ऑफ रिवर्सल को इंडिकेट करती है, ये टू कैंडल्स। अब सेम कैंडल्स मैं आपको सेल में दिखाता हूँ कि सेल में आपने ये चेक करेगा इस, ये यहाँ पे हमारे को बाय में मिली थी, सेम कैंडल्स यहाँ पे हमें सेल में मिली है। आपके पास बहुत सारे कंफर्मेशन होने चाहिए एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। जब आप रियल मनी पे ट्रेड करोगे सो मेक श्योर करो कि आपके पास बहुत सारे कंफर्मेशन होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो मेक श्योर गोल्ड में आप हमेशा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा ही रखे तो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि गोल्ड विक्स ज़्यादा छोड़ता है। ये भी एरियाज देख सकते हैं कहीं आप, ठीक है। सो लाइक ऐसे कॉन्फर्मेशंस आप ले सकते हो, ऐसे कॉन्फर्मेशंस कैंडल्स। अब मैं ये देखो, ये भी एक साइन ऑफ रिवर्सल है, ये वो रिवर्सल है, ये वो पैटर्न है जो 15 मिनट्स पे हमें एक इवनिंग स्टार दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो 30 मिनट्स पे। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दीज टू कैंडल्स आल्सो इंडिकेटिंग ए साइन ऑफ रिवर्सल, ठीक है। अब मैं आपको और साइन ऑफ रिवर्सल दिखा देता हूँ।
1 आवर पे वो आई थिंक हमें मिलेंगे और वो बहुत अच्छे साइन ऑफ रिवर्सल थे। अब ये देखो, दिस इज ऑल्सो ए साइन ऑफ रिवर्सल, दिस इज ऑल्सो ए साइन ऑफ रिवर्सल, लेकिन ये हमारे पास एक जोन में है, ये हमें चाहिए टॉप्स पे। ठीक है, ऐसे पैटर्न्स हमें टॉप्स पे मिलेंगे तो हम इनको उसको ट्रेड करेंगे। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट एरिया दिखाऊं साइन ऑफ रिवर्सल की। यस यस गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे साइन ऑफ रिवर्सल हमें मिलेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे मारुबुजु उसकी डार्क क्लाउड्स की। डार्क क्लाउड्स कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को डार्क क्लाउड आई थिंक बता दूँ तो वो बेहतर होगा। डार्क क्लाउड आई थिंक हमें यहाँ मिली है, एग्जैक्टली यहाँ पे हमें मिली है। अच्छा, डार्क क्लाउड कैंडल कैसी होती है मैं आपको दिखाऊं। ये कैंडल आप देख रहे हो, मैं आपको इसको जूम करूँ थोड़ा। ये कैंडल, ये यहाँ से, ये वाली कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ क्लोज हुई है, लेकिन ये यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ क्लोज हुई है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन यहाँ ये गैप देख रहे हो, ये गैप, देयर इज अ स्मॉल गैप। सो व्हाट इज इट इंडिकेटिंग, ये क्या इंडिकेट करता है ये गैप? ये गैप इंडिकेट करता है कि देयर इज सम प्रेशर कम इन टू प्ले, ओके, सेलिंग प्रेशर। और ये कैंडल हमारे पास क्लोज यहाँ पे हुई है और फिर यहाँ से हम गैस कर सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है और जब स्पेस आता है उसको हम कहते हैं डार्क क्लाउड। और डार्क क्लाउड हमें कहाँ मिलेगी? डार्क क्लाउड हमें ऑर्डर ब्लॉक जोन के पास ही मिलेगी। डार्क क्लाउड हमें टॉप्स पे मिलेगी। ठीक है, सेम आपके पास अगर बाय में बनती है ऐसी कैंडल्स, ठीक है, तो वो भी आपकी डार्क क्लाउड ही कहलाएगी। ठीक है, अगर इस फॉर एग्जांपल ये वाली जो 2 कैंडल्स है, अब ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं टू सी मोर क्लैरिटी। लेट मी चेंज द कलर। यस, अब गाइस ये 2 कैंडल्स अगर हम देखें, सो इसमें हमें स्पेस देखने को मिलता है। लेट मी रिमूव दिस। चलो हम एक छोटा विग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग गाइस, आई एम सॉरी, बट जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि यार ऐसे आपके पास बनती है कैंडल्स, ठीक है, और किस तरह से आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। इमेजिन करो ये आपके पास एक सेल की कैंडल है या ये आपके पास बाय की कैंडल है। सो इसमें जो गैप आ रहा है और ये जो गैप है और ये इस लेवल को भी तोड़ रही है या फॉर एग्जांपल नहीं तोड़ रही, फिर भी ये आपकी डार्क क्लाउड कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे 3 सोल, जो मैं आपको उधर लेकर जाता हूँ। होप सो मॉर्निंग स्टार की आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको डिफरेंट साइन ऑफ रिवर्सल्स दिखाता हूँ कैंडल्स की, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे बहुत सारे साइन ऑफ रिवर्सल कैंडल्स हमें मिले थे और अभी मैं रिजेक्शंस की भी बात करूंगा कि रिजेक्शंस कैसे होती है। गाइज ये एक रिजेक्शन है, ये कैंडल नहीं है, ये एक रिजेक्शन है, इसको हम रिजेक्शंस कहते हैं। ये रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, अब ये देखो वो सेम साइन ऑफ रिवर्सल हमें यहाँ पे भी मिला है और मार्केट कहाँ आई है? नीचे आई है। ठीक है, ये वो साइन ऑफ रिवर्सल था जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। ठीक है, ये चेक करो गाइस। अच्छा, मैं चलो ये लेवल्स नहीं हटाता। ये 2 कैंडल्स देख रहे हो गाइस, ये भी एक साइन ऑफ रिवर्सल है, ये रिजेक्शंस भी है, साइन ऑफ रिवर्सल भी है। और ये कहाँ से रिजेक्शंस ले रही है? फेयर वैल्यू गैप जोन से हमारे पास ये रिजेक्शंस ले रही है। ठीक है, एंड देन आपको जो ऐसे कैंडल मैंने बना के दी थी, मैं दिखा दूं आप लोगों को गाइस टू सी मोर क्लैरिटी। मैंने बताया था ये एज ए रिजेक्शंस जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, ये चेक कर सकते हैं गाइस।
कि ये एक रिजेक्शन, एक जोन से मार्केट जब रिजेक्ट हो रही होती है, वो चाहे कोई ऊपर वाला जोन हो लाइक टॉप जोन हो, या कोई हमारे पास एक सपोर्ट वाला जोन हो, कोई सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा टॉप जोन ये है, हमारा टॉप जोन ये है और हमारा सपोर्ट ये है, ठीक है। तो आपके पास सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है। अब मार्केट फॉर एग्जांपल नीचे आ रही है, ठीक है, सपोर्ट जब ब्रेक, तो आपके पास ऐसी कैंडल्स बनती है। जब ऐसी कैंडल बनती है तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि मार्केट सेल जाने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको वो कैंडल्स दिखाऊं। सो गाइज ये हो गया आपका रिजेक्शन, ठीक है। ये एक जोन से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, ठीक है, और सेम जोन पे मार्केट ने दोबारा रिजेक्शन ली है। जब कोई फॉर एग्जांपल मार्केट की जोन से रिजेक्शन लेती है ना, तो मार्केट उस जोन पे दोबारा आती है, ये आप चेक कर सकते हो गाइज। मैं लाइव चार्ट्स की एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूं, ठीक है, लाइव चार्ट्स। और यहाँ पे दोबारा आपके पास क्या बने आप गाइज चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये अब आप कहोगे कि यार ये तो डार्क क्लाउड है। ये डार्क क्लाउड नहीं है, ये जिस जोन पे बनी है ना, ये जोन गलत है, ठीक है। ये जस्ट ये आप चेक कर सकते हो। अब इसकी अगर हम बात करें ना, तो ये कैंडल, ठीक है। सो ये कैंडल आप गाइस चेक करें कि ये जो विक्स है ना, जस्ट ये विक्स, अब यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन हुई है 2 दफा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन हुई है ऑलरेडी, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकेंड रिजेक्शन। ये वाली जो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है ना, ये जस्ट इस विक को टेस्ट करने आई थी, जस्ट इस विक को टेस्ट करने आई थी, ठीक है। इन विक्स को गाइस ये टेस्ट करने आई थी, ये सेकंड कैंडल, ठीक है। और देन आप देख सकते हो कि मार्केट, अब यहाँ पे मार्केट जस्ट बायर को ट्रैप कर रही थी कि यार मैंने ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, गेम किया। अब इस साइकिल को आपने समझना है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, यू गोना मेक मनी इन दिस फाइनेंशियल मार्केट। ओके गाइस, सो दिस इज गाइस, अब ये चेक कर सकते हो गाइस। अब मैंने ये मॉर्निंग स्टार का जो पैटर्न है, इतने पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब सॉरी, मैं इसको ब्लैक कर लूं, ओपेसिटी लो, ओके। सो ये गाइस आप चेक कर सकते हो को, ये आपके पास एक फॉर एग्जांपल यहाँ से फिर ये मूव तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट किया, मार्केट यहाँ आई। अब सेम जोन पे एक फेयर वैल्यू गैप है। अब आपके पास एक प्रॉपर मॉर्निंग स्टार बना है, और अगर मॉर्निंग स्टार बना है तो ट्रेंड भी तो हमारे पास बाय का है ना, तो आप इंटर हो सकते हो, इजीली आप इंटर हो सकते हो। और अगर आप इंटर भी होते हो फॉर एग्जांपल यहाँ से इंटर होते हो, ठीक है, और स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल आप यहां रख लेते हो इस लो के नीचे, तो गाइस मार्केट कहां गई है, और ये बहुत बड़ा मूव है। अब ये देखो 1:18, मतलब अगर आप $10 भी लगाओ तो $180 आपको बन रहा है। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग गाइस, दिस इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग। सो लाइफ में रिस्क लेने पड़ते हैं, छोटे रिस्क ले आप बिल्कुल ले, ठीक है। और आप अगर जब तक रिस्क नहीं लोगे, लाइफ में कुछ नहीं बनेगा आपका। ये देखो, ये आपके पास प्रॉपर ये जोन्स टूट रहे, ठीक है। तो इस तरह सपोर्ट्स को रेजिस्टेंस को मैं प्रॉपर एक लेक्चर बनाऊंगा जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, कैसे आप अच्छे जोन्स को ड्रा कर सकते हो। आज तो खैर हमारा जो लेक्चर है वो कैंडलस्टिक्स के बारे में है, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेम एरिया पे, साइन ऑफ रिवर्सल की बात करते हैं। ये देखिए गाइस, ये भी एक साइन ऑफ रिवर्सल है, ठीक है। ये सेल में आपको मिला है, ये 2 कैंडल्स। अब ये डार्क क्लाउड, ओके, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब ये अगर देखे जाए तो इनकी 1 2 3 4, अब 4 कैंडल्स इनकी बॉडी को इसने ब्रेक किया है, ठीक है। और ये टाइम फ्रेम है जी हमारे पास 30 मिनट्स का, ये कोई 1 मिनट वाला नहीं है जिस पे हम लाइक ट्रस्ट ना कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रेक किया है, सो हम कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रही है, ठीक है, रिजेक्शन ले रही है, तो हम इजीली सेल में इंटर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, सो ये रिजेक्शन, ये साइन ऑफ रिवर्सल, ये गोल्ड पे गाइस आपको जब कोई सपोर्ट फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे सपोर्ट आपका ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक हुआ है गाइस, ठीक है। अब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है, मार्केट जस्ट इस फेयर वैल्यू गैप के पास गई है, ठीक है। क्लोजिंग का आप वेट करें, कैंडल क्लोजिंग का, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, और फिर जब ये मूव आपके पास आया है, ये वाला मूव, सो ये मूव 1 2 3 4, तो इन 4 कैंडल्स को इसने इनगल्फ किया है। आप चेक कर सकते हैं, इनके बॉडी को ब्रेक किया है।
आप इजीली सेल में घुसो बिकॉज यू नो द फैक्ट कि आपके पास ये सपोर्ट टूटे हैं ऑलरेडी। मार्केट जस्ट फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देने आई थी और उसके बाद इतना शार्प मूव विद रिजेक्शन आपके पास आया है और आप आराम से सेल में घुस सकते हो। और आप अगर फॉर एग्जांपल जो मेरी स्ट्रेटजी है, आप अगर यहाँ पे 2 ट्रेड्स भी करो ना, 2 ट्रेड्स, ठीक है, आप यहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस रख लेते हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल 1:3 का लगा, हाँ एग्जैक्टली आपको 1:3 मार्केट ने दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लाइक पता होना चाहिए कि अग्रेसिव मूव आने वाला है। आपने करने 2 ट्रेड्स है, एक का स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया 1:3 और एक का स्टॉप लॉस आपके इसके 80% पे आपने रखने हैं मार्केट पे, ठीक है। अगर कैंडल फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कैंडल देखो यहाँ तक विक आई है बस, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है गोल्ड में कि मार्केट जस्ट जब रिजेक्शन ले लेती है तो बड़ा मूव हमारे पास आता है। अब ये देखो गाइस, 1:8 और 1:3 मतलब 1:11 का ट्रेड आपको मिला है। सो इट्स मोर देन इनफ गाइस, इट्स मोर देन इनफ इन पाकिस्तान। ओके, अच्छा। सो ये रिजेक्शंस हो गए, ये साइन ऑफ रिवर्सल हो गया, ये साइन ऑफ रिवर्सल हो गया, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है। और मारुबुजु कैंडल जो मोमेंटम को शो कर रही होती है हमारे पास, ठीक है। ये जी ऑर्डर ब्लॉक्स है। अब मैंने बहुत सारे ब्रेकडाउन्स बनाए, आप मेक श्योर करके देखें। ये जो मैंने आपको इवनिंग स्टार का एग्जांपल दिया, सॉरी मॉर्निंग स्टार का एग्जांपल दिया। मॉर्निंग स्टार जो है हमारे पास बॉटम में बनता है, इवनिंग स्टार जो है हमारे पास टॉप्स में बनता है, ठीक है। ऐसे विक्स मार्केट जब क्रिएट करती है और ऊपर जाती है वट एवर, तो ये इन विक्स को मोस्टली कवर करती है। ये देखो मैंने टारगेट्स लिखा हुआ है। सो ये ब्रेकडाउन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा गाइस, अब मैं इस एरिया की थोड़ी बात करूंगा और इसको हम हटाते हैं फिलहाल। इसको हम हटाते हैं गाइस, ये भी एक रिजेक्शन है, ठीक है। ये चेक कर सकते हो गाइस। अच्छा, ये ट्रेड में इनको हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ। ये मैंने लिखा भी था, ये देखो, एंट्री ऑन वेक। ये एक फॉर एग्जांपल हमारे पास जोन था, ये जोन हमारे पास ब्रेक हुआ, ठीक है। मार्केट आई है, अगेन हमारे पास मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में टैप हुई है और टैप हुई है मार्केट, लेकिन मार्केट ने हमें क्या दिया है ये भी तो देखे, साइन ऑफ रिवर्सल, वो 2 कैंडल्स जो मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। इनको आपने याद करना है, इनके पिक्चर्स लेने हैं जब जब जहां भी आपको ये मिले इस तरह के कैंडल्स, ठीक है। ये साइन ऑफ रिवर्सल आपसे बात कर रही होगी प्रॉपर, और ये देखो मार्केट आई है नीचे, ठीक है। सो जो कहते हैं ना कि प्राइस एक्शन टॉक, एग्जैक्टली प्राइस एक्शन टॉक्स। तो ये आप चेक कर सकते हो गाइस। और फिर आपके पास ये सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है, ठीक है। और ये रिजेक्शन आप चेक कर सकते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट काइंड ऑफ यू नो। एंड देन आपके पास ऑर्डर, मतलब आप जब आप डिसिप्लिन होंगे आप पैसा बना लोगे मार्केट से, सिंपल। ये चेक करें गाइस। ये एरिया मैं अब दिखाता हूँ आपको। ये हम आई थिंक 1 आवर पे हैं, सॉरी 1 आवर पे हम जाते हैं, 1 आवर पे। ये देखिए गाइस, ये 30 मिनट्स पे लाइक डिफरेंट सिनेरियो होता है और 1 आवर पे डिफरेंट होता है। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्ट हो रही है और 1 2 3 4 5 6 इन कैंडल को ये वाली इनगल्फ करती है और इनके बॉडी को तोड़ती है। सो आप इजीली सेल में जा सकते हो बिकॉज यू नो द फैक्ट ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट रिजेक्ट हुई है। अच्छा गाइस, दिस इज आल्सो रिजेक्शन, ठीक है। ये एक जोन था, एग्जाम जोन से मार्केट रिजेक्ट हुई है।
प्रॉपर। सो गाइस, होप सो इस लेक्चर से आपको बेनिफिट हो चुका होगा और मैं ऐसे ब्रेकडाउन्स और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। सो मेक श्योर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक अकाउंट्स नहीं बनाए अकाउंट्स बना लो। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए एक्सएम और एक्सनेस ब्रोकर के। रिकमेंड मैं यही करूँगा, एक्सनेस से बेहतर है 100%। एक्सएम मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एक्सएम के साथ, ठीक है। आपने अगर मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है और मेरे ट्रेड्स लेने हैं, सो आपको दो काम करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने व्हाट्सएप जो मेरा फ्री ग्रुप है उसको आपने ज्वाइन करना है, और सेकंड, आपने मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर लिंक पे अकाउंट्स बनाने हैं जो एक्सनेस है फर्स्ट और एक्सएम है। एक्सएम पे मैं रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आप ऑलरेडी एक्सनेस यूज़र हो तो एक्सएम पे भी अकाउंट खोल के देखो, और एक्सएम पे आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। लो स्प्रेड अकाउंट खोलो, ठीक है। स्टैंडर्ड खोलते हो स्टैंडर्ड खोल लो, लो स्प्रेड खोलते हो आप, अगर आपको फॉर एग्जांपल स्प्रेड नहीं चाहिए तो आप लो स्प्रेड या रॉ स्प्रेड्स अकाउंट एक्सएम पे खोलो। मेरे ब्रोकर लिंक्स पे आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो व्हाट्सएप पे, और मैं आपको अपनी फ्री कम्युनिटी प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। आपको अगर जस्ट देखना है कि फॉर एग्जांपल मेरे सिग्नल की एक्यूरेसी है नहीं है, सो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करो, और फिर आपको जब ट्रस्ट हो जाए कि यार मतलब मैं गेंस बनाता हूँ पर वीक, सो आप मेरे जो प्रीमियम कम्युनिटी है जिसमें मैं प्रॉपर बताता रहता हूँ, प्रॉपर गाइड करता रहता हूँ कि क्यों एंट्री ली, किस वजह से ली, उसमें मैं शॉर्ट क्लिप्स डालता हूँ उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में। सो मेक श्योर करो कि आप एक्सएम पे अकाउंट बनाओ और मुझे ज्वाइन करो, और मैं आप एक्सनेस पे भी अगर आपके अकाउंट तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर बेटर एक्सपीरियंस आपको चाहिए लाइफ लॉन्ग, सो एक्सएम इज द बेस्ट option that you can take. Thank you so much guys for watching this video. I'll meet you in the next one. Till then, take care and goodbye.